and I'm really more than honored to be part of this IWSA series. And over time, you would come to know why so. For there are many more reasons for that. Firstly, I too belong to the BARC family, like a very new entrant there, and pursuing a career in research. And along with that, I had the privilege to connect with scientists who were not only proactive in their lab but also very enthusiastic in spreading the knowledge of science to the society through many such platforms. And IFSA being one of the primary running organizations in the place where we reside, that is in Navi Mumbai and Vashi. And many of our own students have been beneficiaries of this program, and they are running communities in Navi Mumbai where their methods are being tested here now. So, with that, just a brief introduction, I'll just proceed to the. Uh, I hope my slides are visible. Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Okay. So, so today I'll be talking a little bit about play and learn science, a collaborative non-zero sum approach. So we will delve into each and every term here, and when we say play and learn, one might start to think, okay, अच्छा खेल खेल में सीखना है तो it should be very easy, यानी कि बहुत easy होगा. यानी हमारा ये मानना है कि जरूरी नहीं वो easy हो. We are making it easy. The level of difficulty will be there, but you won't find it difficult. That is what we are trying to do. There is no dilution in the concept. और कि यानी कि easy करने के लिए जैसे उसको बहुत डाइल्यूट कर लिया, वैसा नहीं है. हम उसको इजी करने के और नए तरीके ढूंढ रहे हैं. एंड इनफैक्ट आई एम रियली हैप्पी टू नो अबाउट the Rishi Valmiki Eco Schools pedagogy, because ours also align a lot. So I think it would be very easy for us to communicate further also in that direction. So I'll briefly start with providing the basic बैकग्राउंड ऑफ साइंस, लाइक एक छोटा सा ट्रेलर जिसमें साइंस कहाँ से शुरू होके अब तक क्या क्या हमें आता है थोड़ा बहुत, उसके बारे में एक जस्ट एक ओवरव्यू मैं देता हूँ. उसके बाद फिर व्हाट कैन वी डू विद a logical sequence of learning. Can we find a way to make our learning of science easier by simply changing the sequence of learning? Whether that would help if we can connect the chapters together, the previous chapter to next chapter. We will explore a little bit on that, and continuing on the same line, where to start learning science. And this is the map here, the map of multi dimensions, and we believe like this is a good place for anybody with no prior knowledge of any standard, any class, and even adults who have like even never touched a book throughout their life. They can also connect with science, because science is not just about writing, learning. Those are वो सब बाद में आया. First it is a very empirical and sense based world. We take data through our senses, and everybody who's having active senses can participate in scientific activity and do science and learn science. In fact, Michael Faraday, for example, he came up with the idea of magnetic lines first. उसके equations बहुत बाद में आए, मैक्सवेल बहुत बाद में लेके आए. तो वो सेंस जो है वो हम यानी कि फिजिकली फिर से साइंस से कनेक्ट करना और रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना, वो हम कोशिश करेंगे. जो फर्स्ट, दिस विल बी लाइक one of the first route after which further science can be like taught. So that's what we are thinking of, and we will dwell a little bit about the new play and learn methods that we have been developing over the past 2-3 years here, for especially for chemistry and the periodic table. जो कि काफी, जो भी मेरा फीडबैक रहा है कि उसी से काफी बच्चों को डर लगता है, फिर वहां से ही फिर केमिस्ट्री को रटना शुरू कर देते हैं, इक्वेशंस को और वो सब सारी सारी चीजों को. एंड वी विश एम्फसाइज कि इफ वैलेंसी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर वेल अंडरस्टूड, देन आगे की जो केमिस्ट्री लर्निंग है वो बहुत ईजी होगी. बट दीज टू कॉन्सेप्ट्स नीड टाइम, एंड वी कैन प्रोवाइड a time through playful methods and certain easy to do home as well as social experiments, which if implemented in a collaborative way, the impact, we can see certain impact in the society also in the process of learning. So I will first, I will briefly proceed to the
map of science, that is the adventure map, which we have labeled as Jigyasa, the adventure of science. So here we try to understand the very basic of science. पूरा science का trailer है, where you will see the teamworks of people who worked in physics, chemistry and biology all coming together. Earlier, all these branches had lot of disputes, lot of disagreements, but by the end of just 100 years ago, things started to crystallize and people started to get together. एंड उसी का आज हम फायदा उठा रहे हैं कि मैं यहाँ काफी दूर हूँ आपसे बैठे और हम लोग ये सारी चीजें थ्रू ऑनलाइन ये सब डिस्कस कर पा रहे हैं. एंड इवन लाइक ऑल दैट प्रोग्रेस दैट केम due to the progress in theory of modern science. So a brief history of that, not just in a historical sense, but in a more like a sense based approach, कि हम क्या सेंस करते हैं उस अप्रोच में हम जरा ऑब्जर्व करते हैं और अब तक हमने क्या सीखा उसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. तो let us start. It's like just close your eyes and feel the empty space that is there. You have no senses. Okay, so if it's also empty, also dark, but let's begin the journey. No matter what, for that, can you make the smallest mark? So in this dark empty space, can any student tell what would be the smallest mark that you can make? Sir, a standing line. A line. Okay, line is, will it be the smallest? You can definitely Sir, make a line. Yeah. Yes. sir, it can be a dot. Very good. The smallest mark you can make is a dot. Okay. So dots have a value. Okay. So dot tell you one thing, that is the location in space. Okay. जब आप Google Map में देखते हैं, your location comes as a dot ना. And Yes. dot have a place in the whole like matrix. Okay. In the and the big picture, each dot represents something. Okay. And in a way, it is a dimensionless number. Okay, it is known as zero dimension क्योंकि उसका किसी भी डायरेक्शन में कोई लेंथ नहीं है. So basically the next thing it comes logically, it just comes next. What happens when we connect a lot of dots, like a beads of pearls in a thread? What would happen? What Line. will form a line? Very line. good. It will create a line. It will be a straight line which is one dimension, 1D. Okay, जो हम स्केल से नापते हैं, that is one dimension. Okay, and so what will happen now if you put one dimension parallel to one more dimension like that? Like suppose आपके पास एक धागा है, आपके पास एक टेलरिंग मशीन है, आप उसकी सिलाई कर रहे हो, तो उस 1D को आपने क्या में कन्वर्ट कर दिया? एक चादर टाइप बना दिया, एक हैंडकरचीफ बना दी उसका. तो what is that conversion? What does that line become? Two-dimensional. Very good. It becomes two-dimensional, and what it will cover? It will cover more space. Area. It will cover an area, right? तो ये क्लियर हुआ ना. हम एक डिमेंशन में लेंथ मेजर कर रहे थे, अभी 2 डिमेंशन में लेंथ मेजर कर रहे हैं. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. शेप्स कुछ भी हो सकता है. 1 डिमेंशनल शेप भी ट्विस्टेड हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है. 2 डिमेंशनल शेप सर्कुलर, ट्रायंगल, ऑल दैट इज लाइक डिटेल्स, बट ऑल दैट इज 2 डिमेंशनल. उसकी साइज भी बहुत वेरी हो सकती है. अभी मान लीजिए आप अभी माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, तो उसकी साइज जो होगी एक की, वो मे बी माइक्रोमीटर या मिलीमीटर में होगी. लेकिन अभी आपको मान लीजिए अभी स्कूल का पूरा प्लेग्राउंड का एरिया लेना है, तो आपको मीटर स्क्वायर या फीट में लेना पड़ेगा. ये सब साइज में वेरी हो रहा है, बट इट इज ऑल मेजरमेंट ऑफ एरिया ओनली. ओके, सो दिस इज 2D इज एरिया. एंड इवन जो आप नॉर्मल टीवी या मूवीज ये सब देखते हैं, दैट इज शोन इन अ स्क्रीन, राइट? So that is 2D movie. Okay, so what will happen? What makes it 3D? Okay, Sir, when we can show it's sir मतलब हम लोग उस वक्त उसका 3 तरफ देख सकते हैं. बिल्कुल. तो अभी आप जो रूम में हो ना, रूम में बैठ के आप हमें पॉइंट कर सकते हो ऐसी कौन सी जगह है जिसको पॉइंट करके हमें समझ में आ जाए कि हाँ यार ये 3D है? Sir, the corners. वेरी गुड. ओके, जब हम कॉर्नर में देखेंगे तो वहां 3 लाइन जाते हुए दिख रहा है ना, और हर कोई हर एक से 90 डिग्री पे है ना. तो इन्हें तीन लाइंस ऐसे हैं, तो ये 3 डिमेंशन है. इन्हें हमें तीनों डायरेक्शन में लेंथ की अलग मेजरमेंट करनी पड़ेगी. ओके, सो ये हमारा 3D है. तो हम बेसिकली जब हम कोई इस वर्ल्ड को सेंस करते हैं, तो हम
स्पेस को कितने डायमेंशन सेंस कर पा रहे हैं? 3 डिमेंशन। और 14 डिमेंशन स्पेस का दिख रहा है क्या? कोई ऐसा है कोई जिसके पास कोई ऐसी अद्भुत ताकत हो या शक्ति हो जो 4th डिमेंशन इन स्पेस देख पा रहा है? नो सर। नॉट येट ना? ओके, नो प्रॉब्लम, मेरे से भी नहीं होगा। तो एट दिस पॉइंट लेट अस अग्री। हेलो, Yes, sir. वरना Hitendra, please mute yourself. Thank you, Hitendra. हेलो, या ओके। So these are the space dimension, 1D, 2D, 3D, 0D, ये सब space का measurement है। Okay, so along with space, what other dimension is there? Okay, which is not measured by space? Okay, for example, हम अभी मीटिंग के लिए सबको गूगल का लिंक मिला है, लोकेशन अभी सबका अलग अलग है, वी आर एट डिफरेंट स्पेस। आइडियली क्लासरूम में मुझे वहां गोरेगांव आना था या फिर आप लोग यहाँ पे आते, बट वी आर इन डिफरेंट स्पेस जोन, but through Google Meet we could connect, but there is one dimension which we had to connect for this meeting to happen. What is that dimension? The time. Very good, है ना? टाइम तो मैच We होना have to चाहिए ना be on a same time. एकदम, दे शुड ऑल हैपन इन अ सेम टाइम। सो ये तीनों स्पेस के डिमेंशन हुए, डॉट, लाइन, 1D, 2D एरिया, 3D स्पेस। सो जस्ट रिमेंबर L square L cube, L into L into L, okay, L square L cube, and the next dimension is time, T, okay, so together they are called as space time। ओके, स्पेस टाइम पे भी बहुत सारे थ्योरीज हैं, इट्स अ डीप कॉन्सेप्ट। अभी के लिए लेट अस प्रोसीड फर्दर कि देयर इज स्पेस एंड टाइम, ओके, एंड हाउ इट इज फिल्ड अप विथ। अभी दिन में हमें लाइट दिख रहा है, अंधेरे में लाइट नहीं दिखेगा, सो देयर इज समथिंग नोन एज लाइट, एंड व्हाट एल्स इज देयर इन द स्पेस दैट यू सी? और क्या? सर स्टार। यस, स्टार्स। यस, स्टार्स आर देयर। वो सब किस में आएंगे? व्हाट डज इट Sir, matter. which category does it come? स्टार्स हो या आपके रूम के जो चीजें हैं वो है, हवा भी है रूम में, ये सारी चीजें किस में आएंगी? विच कैटेगरी डज इट कम? Sir, matter. Very They are all good. made Okay, up of so they matter. are all matter. So how do we connect with our senses? Light is something which we can see, and light too we will come to know it is very part of a very big spectrum का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही हम देख पाते हैं। Okay, light is something we will come to, but at this point we can focus a little bit on matter. Okay, matter is something which we can touch, feel, smell and hear, even hear। Okay, so we will get to know where यानी कि यहाँ पे why do we hear matter? Okay, so ये सब is the very basic of science कि स्पेस टाइम है, उसमें लाइट है और उसमें कुछ तो मैटर है ना? अब मैटर के अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जो हमें देखने मिलते हैं, और मैटर और लाइट के रिलेटेड भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें इस वर्ल्ड में देखने मिलते हैं। और ऑन स्टडीइंग दोस प्रॉपर्टीज देयर आर मेनी लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच वी कुड रिवील। ओके, कि यहाँ थोड़ी अलग दिखती है, फिर हम और डेप्थ में जाते हैं तो बहुत अलग दिखता है। ओके, सो व्हाट आई विल डू बिफोर गोइंग देयर, आई विल जस्ट I'll just refer you to a video जो आप लोग बाद में देखना। Okay, I will just briefly, okay, this is Power of 10, you can search, it's a very old video। Okay, so let us dwell on the dimension of length itself। Okay, what I do due to shortage of time, थोड़ा सा इसका स्पीड बढ़ा देते हैं। Okay, okay, so slowly in this video what happens, वो एक एक डिमेंशन वो बड़ा करते जाते हैं ना, हम दूर जा रहे हैं, अभी 10 मीटर की दूरी है। Okay, we are increasing the powers of 10। Okay, so अभी फर्दर तो हमें क्या यूनिवर्स दिखता है? पूरी एक शहर दिख रही है, ठीक है, और पीछे जाएंगे मे बी द होल कंट्री, देन ओवर टाइम द एंटायर अर्थ।
Okay, so when we move far away and when we started to see far away, for example, जब गैलीलियो ने देखा था टेलीस्कोप पहली बार, very far away, okay, to very distant galaxies, and we find that it keeps repeating. बहुत सारे stars हैं, और भी galaxy हैं, और भी stars हैं, और भी पता नहीं अलग-अलग तरह के यानी कि फिनोमिना है. बट उससे मेरे लिए उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि जो स्टार्स में हो रहा है ना वो भी इसी से गवर्नड है कि अंदर क्या हो रहा है, वो भी स्केल अप हुआ है जो प्रोसेस है. तो एक एटम के अंदर क्या हो रहा है उस चीज के जानने से जो स्टार्स में हो रहा है उसके बारे में भी काफी जानकारी मिल जाती है. और इनफैक्ट हम में से कोई स्टार में तो गया नहीं, तो धरती में बैठ के हम कैसे बोल पाते हैं कि स्टार्स में ऐसा हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, ये सब क्योंकि हमने धरती में जो मैटर है उसको बहुत अच्छे से समझा. और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो लाइट जो पड़ रहा है अर्थ में, लाइट को, उसको भी बहुत अच्छे से समझा. उसकी बहुत अच्छी स्टडी हुई तो समझ में आएगी कि तारों में भी क्या चल रहा है, उतना दूर दूर भी क्या चल रहा है ना, उसका आइडिया लगा. बट उसका आइडिया कब लगा, जब हम बाहर के साथ साथ और अंदर भी जाना शुरू किए, यानी कि एटम के अंदर तक क्या होता है उसमें जाना शुरू किए. तो अभी हम उल्टा जा रहे हैं, तो हमें नीचे की तरफ भी और लेयर्स ओपन होते हुए दिखेंगे. जैसे ऑनियंस के बाहर के कुछ लेयर्स है, आप मान लीजिए अभी अंदर के हमारे लेयर्स हैं, जो हमारे अंदर भी अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं, तो वो सब अभी उसमें इस वीडियो में अच्छा रिवील करता है. Okay, now what we will go, there is one droplet of water there. Okay, so we are going to go deep into it. ओके, तो आप एक ड्रॉपलेट को भी एक अच्छे माइक्रोस्कोप में देखेंगे जो 100 या 200 टाइम्स मैग्निफिकेशन देता है, तो आपको एक पूरी कॉलोनी या पूरी शहर बसी हुई दिखेगी. वो छोटे छोटे लाइफ फॉर्म्स हैं, उनकी भी अपनी लाइफ है, खाते पीते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उसके बाद उनकी भी डेथ होती है, फिर डिकम्पोज हो जाते हैं. छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. हमारे बॉडी के अंदर भी वैसे ही हैं, हम भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के समूह है. और फर्दर हम अंदर जाते हैं तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी एक काफी कॉम्प्लिकेटेड दुनिया है, पूरी प्रोसेसेस हैं और वेल ऑर्डर्ड एक तरह से केमिस्ट्री का पैटर्न्स एंड सीक्वेंसेस हैं कि कुछ कुछ रिएक्शंस कुछ कुछ वैसे ही होंगे. तो हम चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेयर में, दैट इज द लेयर ऑफ एटम्स. जब हम बहुत अंदर अंदर तक जाते हैं और एक लेयर में पहुंचते हैं तो हमें एक ऐसा लेयर मिलता है जिसमें काफी इंफॉर्मेशन है. जब हम एटम्स के लेयर को समझते हैं, क्योंकि इसी एटम से हमारा शरीर भी, लिविंग थिंग्स भी इसी एटम से बने हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी इसी एटम से बने हैं, इस धरती में भी चीजें उसी एटम से बनी है, और स्पेस में भी चीजें इन्हीं सब एटम से बने. ओके, तो एटम्स तक की कहानी मान लीजिए 1800 1900 तक ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश हो चुकी थी. और इसमें भी एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका भी काफी बड़ा रोल रहा. इससे पहले के केमिस्ट और फिजिक्सिस्ट, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा. और मेंडेलीव, उनका बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेंडेलीव की, और उनके मम्मी का, मेंडेलीव के मॉम का बहुत बड़ा रोल रहा है. तो ये सारे काफी सारे स्टोरीज हैं साइंस के और उनके जो लोगों के, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. अब वो भी थोड़ा सा बाद में हम लोग वी कैन टच अपॉन दैट. बट एट दिस पॉइंट द स्टोरी ऑफ एटम इज वेरी सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी ऑफ केमिस्ट्री. क्योंकि रिचर्ड फेनमैन का वेरी फेमस कोट है, मान लीजिए कि कल को ही ये पूरी धरती तहस नहस हो जाए, उससे पहले आगे आने वाली पीढ़ी को आप एक लाइन में आपको उनको कुछ बताना है, तो क्या आप बता के जाएंगे ताकि वो जल्द से जल्द जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है वो कर सके. तो उन्होंने बोला कि ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. अगर ये बात अगर उनको बता के चले गए हम, तो हो सकता है कि आगे आने वाली पीढ़ी वो बहुत जल्द से जल्द जो है वो प्रोग्रेस कर सके. ये रिचर्ड फेनमैन का काफी फेमस कोट था. लेकिन जो एटम्स को जो नाम है ना वो खुद एक झूठ है, क्योंकि एटम्स नाम ये नाम से रखा कि उसको तोड़ नहीं सकते. लेकिन एटम्स की जानकारी तभी मिली जब हम न्यूक्लियर साइंसेस और रेडियो एक्टिविटी में गए और एटम को तोड़ पाए और उसके अंदर की जानकारी पूरे हमें जो है निकाल पाए. तो हमें इस एटम्स के अंदर उसके जो प्रॉपर्टीज का वजह है वो मिलता है कि उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस वजह से आती है. तो उसके अंदर का हमें ऑलरेडी शायद सिलेबस में भी है कि जैसे प्रोटॉन्स होते हैं सेंटर में, यहाँ पे काफी ज्यादा मास होता है, उसका जो वस्तुमान या मास जो होता है वो मेनली उसके सेंटर में होता है. जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उसमें प्रोटॉन्स में प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं.
और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। और ये भी आगे का देखा गया है कि ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी और छोटे क्वार्क्स और इन सब चीजों से बने। तो फर्दर ये एक तरह से मल्टीपल लेयर्स में जस्ट एक ब्रीफली आपको बता दिया कि मैटर में क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और उसमें मास होने के वजह से ग्रेविटी होती है, और उसके जो चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल करने की वजह से उसको वॉल्यूम अपना रखना पड़ता है कि सारा मास एक ही जगह, जैसे ब्लैक होल जैसे सारा मास एक जगह पे केंद्रित नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि दोनों माइनस चार्ज हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए उनको दूर दूर फैलना पड़ता है। तो मैटर हैज बोथ मास जो उसके सेंटर में है, and it also occupies volume. It has to occupy volume because electrons repel each other. They won't allow everything to come together, and there is a finite energy that is needed जो normal condition में नहीं मिलेगा to bring the atoms together. Okay, जो कि stars में होता है fusion. Okay, we will get to that later, but अभी के लिए matter occupies space and has mass. Mass कहाँ से आया? Mainly center से आया। इलेक्ट्रॉन्स की भी थोड़ी सी मास होती है, अराउंड 1000 टाइम्स मास होती है प्रोटॉन के, बट मेन मास उसके सेंटर से आया। और वॉल्यूम क्यों आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दोनों सब नेगेटिव चार्जेस होते हैं, वो सब एक दूसरे को दूर रखना पसंद करते हैं। इवन प्रोटॉन भी, एक एटम का प्रोटॉन दूसरे एटम के प्रोटॉन को दूर दूर रखना पसंद करता है। ओके, सो इस तीनों डिमेंशन से, मास, लेंथ और टाइम से, हम जब ये मैप को फॉलो करते हैं, जब हम 0 डिमेंशन से लेंथ में जाते हैं, फिर एरिया, फिर वॉल्यूम, फिर मास, फिर हम समझेंगे डेंसिटी को। ओके, ये सारी चीजें हम जब मेजर करते हुए सीखेंगे तो बेसिक जो है वो पूरा एक बार क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम जब साइंस पढ़ने जाएंगे तो हमें साइंस बहुत इजी लगेगा। उसके बाद फिर हम आगे टाइम पढ़ सकते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, सरफेस टेंशन, प्रेशर। ये अभी जस्ट मैं ब्रीफली सब बता रहा हूँ, बट ये क्या है कि एक एक पहले वाले पे बिल्ड हो रहा है। जैसे कि अभी टाइम, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज लेंथ अपॉन टाइम। आपने पहले भी लेंथ और टाइम के बारे में अलग से पढ़ लिया है, तो वेलोसिटी इजी रहेगा। फिर एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। फिर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये सारे कंबाइंड यूनिट्स हैं, इनको आप जब मेजर करेंगे खुद तो आपको और बेटर यानी कि इजीली फील होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रेशर मेजर करना है, आप जब पुशअप्स मारते हैं ना, आप एक बार क्या कीजिए, केवल उंगलियों में को रख के पुशअप मारने की कोशिश कीजिए। सेकेंड टाइम आप अपना पूरा हाथ नीचे रख के पुशअप मारने की कोशिश कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जब बढ़ जाता है तो पुशअप मारना इजी हो जाता है। ओवरऑल आपके हाथ में प्रेशर कम पड़ रहा है, हालांकि आपका फोर्स तो सेम है, ग्रेविटी आपको नीचे खींच रही है, फोर्स इज द सेम, लेकिन प्रेशर कम हो जाता है। तो ऐसे जब एक्सपेरिमेंट्स करके रियल लाइफ से आप एक एक चीज को जोड़ेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। एंड क्या है कि कुछ कुछ चीजों को एक्सप्लेन करती हैं, जैसे मास, उससे ग्रेविटेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है। इवन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो काफी यानी कि 300-400 साल पहले जो लॉ बनी थी वो आज तक भी वैलिड है, यानी कि टू ग्रेट एक्सटेंट इट इज वैलिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। सो मास इससे बहुत इजीली समझ में आ जाता है। और इनफैक्ट केमिस्ट्री की भी शुरुआत मास के मेजरमेंट से ही हुई। जब आप मेंडलीव और उनकी पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो उन्होंने कभी चार्ज या एटॉमिक नंबर की खोज तो बाद में हुई जब एटम को तोड़ दिया गया। उससे पहले सभी एटम्स की जो पहचान थी वो उसके मास नंबर से ही होता था। मास नंबर को देखते थे और फिर पीरियोडिसिटी को देखते थे। उस पर बाद में जाएंगे कि वो पीरियोडिसिटी इन केमिस्ट्री कैसे आती है, बट मास का शुरू से ही उसकी मेजरमेंट, उसको कैसे मेजर करना और उसकी स्टडीज का काफी बड़ा रोल रहा है। और मैटर का जनरली मास से ही पहचाना गया, लेकिन वो काफी सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, जैसे लाइटनिंग क्यों होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, अपनी धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे हमें सन से बचाती है, क्योंकि सन से काफी सारे ऐसे रेडिएशन आते हैं जिससे हमें अर्थ अपने मैग्नेटिक फील्ड से बचाती है। और यहाँ पे पोल्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक अच्छा स्काई शो दिखाती है, ऑरोरा या नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं जिसे। तो ये सारी चीजें भी जो अर्थ की जो कई सारी चीजें जो हम मास से तो नहीं समझ सकते, तो उसके लिए हमें दो और नई चीजें जो समझनी पड़ेगी, वो है चार्ज के साथ ही दो चीजें आ जाती हैं, वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये दो लिंक्ड कॉन्सेप्ट हैं बट थोड़े थोड़े अलग अलग हैं, दो अलग टाइप के फोर्सेस हैं, बट उनके जो ओरिजिन है वो सेम है।
ये एक चार्ज के बेसिस है प्लस माइनस, और दूसरे को हम नॉर्थ साउथ बोलते हैं। एक जो है वो खींचता है और मैग्नेटिज्म जनरली वो घुमाता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि वो जो प्लस माइनस जो चार्जेस हैं वो ट्राई टू वो लीनियरली एक ही डायरेक्शन में खींचते हैं, लेकिन मैग्नेटिज्म का जो फोर्स जो अप्लाई होता है ना वो घुमाने वाला एक फोर्स होता है। जैसे मोटर जो घूमता है या फैन जो घूमता है उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेट होगा जो ये घूमने वाली जो प्रॉपर्टी है वो उसको देता है। तो जब हम मैटर की बात करते हैं तो वहीं पे साउंड भी आ जाता है, क्योंकि साउंड इज बेसिकली प्रोपगेशन ऑफ मैटर वेव। एटम्स की वाइब्रेशन और उसके प्रेशर का कंपन है जो हम साउंड के रूप में सुनते हैं। जैसे लाइट जो है इट कैन बी सीन एज प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो फोर्स है उसके जो वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको ही हम लाइट के फॉर्म में भी परसीव करते हैं। तो हमारे बेसिकली आप देखेंगे तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हो गए। उसमें जो टॉप 3 है ना वो स्ट्रॉन्ग और वीक ये न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग और वीक है वो उस परमाणु के केंद्र में ही मैक्सिमम हो रहा है। उस वजह से ही जो केंद्र में जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक साथ है, ठीक है, वो इनसाइड द न्यूक्लियस है। और जो भी न्यूक्लियर साइंसेस और न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन रेडियो एक्टिविटी इन सब के बारे में जब आप जानेंगे तो इन फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ऐसा फोर्स है जिसमें बहुत सारे चैप्टर कवर हो जाते हैं। आपकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी, आपकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स और लगभग आपकी पूरी केमिस्ट्री। ओके, तो ये सारी चीज इवन बायोलॉजी भी काफी हद तक आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो फिजिक्स के जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट जो कनेक्ट करते हैं वो चार्ज ये बहुत मैटर करता है। और इवन केमिस्ट्री को आप ये समझेंगे तो एक लाइन में अगर आप बोलेंगे कि केमिस्ट्री क्या है तो इट इज बेसिकली अबाउट हाउ एटम्स गिव टेक और शेयर इलेक्ट्रॉन्स अमॉन्ग ईच अदर एंड मेक बॉन्ड्स। तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, देते हैं या शेयर करते हैं आपस में और कई तरीकों से। यही पूरी एक तरह से आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ केमिस्ट्री है। इसमें ऑब्वियसली थर्मोडायनेमिक्स ये सब भी आता है कि कैसे वो क्यों वो करता है, कैसे वो अपना एनर्जी मिनिमाइज करना चाहता है, वो सारे फैक्टर्स भी आते हैं। बट यानी कि ब्रॉडली यही हो रहा है कि जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो चार्ज्ड चीजों की फ्लो हो रही है। जैसे एक वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है और या फिर एक सॉल्यूशन में आयॉन्स का फ्लो हो रहा है। तो ये सारी चीजें जैसे इलेक्ट्रिसिटी है। और बायोलॉजिकल सर्किट्स में भी हम सेम चीज जैसे कि ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है तो कुछ ना कुछ आयॉन्स का फ्लो है, सोडियम और पोटेशियम का फ्लो है। जब हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉल पीते हैं ना, उसमें सोडियम और पोटेशियम आयन ही हम जब कभी वो WHO जो फॉर्मूला आता है ना इलेक्ट्रॉल का, आप पीछे उसमें पढ़िए कि क्या क्या केमिकल्स हैं, तो आप यानी कि उसमें आपको लिंक दिखेगा कि हमारे बॉडी में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही उसको समझ सकते हैं। और ग्रेविटी से कि तब आएगी जब हमें यानी कि मून मिशन, मार्स मिशन या कोई दूसरे ग्रहों में जाना होगा या कोई चीज को लॉन्च करनी होगी। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें अगर करना होगा तो हमें ग्रेविटी की स्टडीज की मदद लगेगी। तो ये बेसिक एक पार्ट हो गया। तो ये जो पजल है ना ये भी ऐसा हो रहा है कि ये खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी हम लोग एक पोजीशन तक पहुंचे हैं जहां में हमने मैटर को थोड़ा, और वो सर्न में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर करके। आई डोंट नो एग्जैक्टली बट शायद 20 या 21 किलोमीटर के पेरीमीटर की इतना एक बड़ा सर्कल है। और मे बी मैं कम बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, बट बहुत बड़ा एक सर्कुलर ये है जिसमें मैटर को बहुत फास्ट घुमा घुमा के उनको आपस में टकरा रहे हैं, जिससे वो तोड़ के ना और छोटे पार्टिकल्स वो लिबरेट करेंगे। जो छोटे पार्टिकल लिबरेट करेंगे तो उससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिला कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर भी ये क्वार्क्स होते हैं छोटे। तो अभी तक हमारी कहानी यहाँ तक पहुंची है। अब उसके अंदर और क्या होते हैं उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, बट वहां उसके ऊपर क्या है, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें पता चला। फिर ये सब मिलके एक एटम्स होते हैं, तरह तरह के एटम्स होते हैं। वो निर्भर करते हैं कि कितने प्रोटॉन्स हैं आपके केंद्र में और उसी के बराबर के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स वो किन किन कक्षाओं में है, उससे वो एटम के प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है। जब एटम की प्रॉपर्टी डिसाइड होती है तो ये वो डिसाइड करता है कि कैसे मॉलिक्यूल बनेगी। फिर वो सब मिलके हमारा एक बड़ा मैटर को रूप में लेता है। तो जब हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हुए, हमने पहले इस वॉल्यूम तक एम्प्टी स्पेस टाइम में गए, फिर उसको हमने मास से भरा, फिर मास के अंदर जाके थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज की हमने जानकारी ली, और उसकी वजह से ये सारी हमें यानी कि फिजिकल जो रियलिटी में जो हम मेजर करते हैं वो सब हमें मिल रहा है।
कि कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है अंदर, इसी वजह से फोर्स, पावर, एनर्जी, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि मैटर अपने आप में ना वो इतना भी स्टेबल नहीं है, वो बहुत कुछ करना चाह रहा है, वो अपने स्टेट को चेंज करना चाह रहा है, उसको Sir, I'm मौका not मिलने पे getting अपनी about एनर्जी कम matter. करना चाहता है। ओके, सो ये सारी एक्टिविटी कौन गवर्न कर रहा है? जो उसके मैटर के अंदर है वो गवर्न कर रहा है। ओके, तो इसके रूल्स काफी सिंपल है कि कोई भी एटम है तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे अगर वो न्यूट्रल एटम होगा तो जैसे कार्बन है तो 6 प्रोटॉन होंगे तो बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। Sir, यस, sir, I'm not getting. विच पॉइंट? This the origin of matter. Okay, so this slide. Yes. Okay, so currently what you are not getting, even the scientists are not getting. There are certain, what we are trying to do, like first we thought that atom is indivisible. Okay, then we probed further with some more high energy particles and we found that atoms can be broken. Okay, and it is mostly empty space filled with electrons that is whizzing around the central nucleus. Okay, which consists of protons and neutrons. Later, these protons and neutrons are also found to be consisting of much smaller particles known as quarks. Sir, is there anything smaller than quarks? We don't know. Okay, you might have to come up with maybe more higher energy, like large. This is all open questions for you people. कि जब आप लोग आगे साइंस करोगे तो ये सबका आंसर्स मिलेगा। उतने एक्सपेरिमेंट्स हुए ही नहीं है, मे बी उतने हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं हुए हैं अभी तक, हमें यहां तक हम लोग पहुंचे हैं। ओके, और ये जो प्रोग्रेस है बहुत जल्दी हुआ है। एटम का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से था, बट एटम से ये वाला जो जंप है ना, एटम से क्वार्क वाला जंप, ये पिछले 100 साल में ही हुआ है, या उसके जस्ट यानी पिछले 200 साल के आसपास ही हुआ है। तो ये बहुत बड़ा जंप है नॉलेज में, और इससे दुनिया बहुत बदल गई है। Can we create matter artificially? यस, Can we create matter artificially? the creation of matter requires energy. So which form of energy can you convert to matter? So like China have created artificial sun and moon. See, artificial sun जो है ना, that is, no, they didn't create matter, they made something do nuclear fusion. Okay, basically they fused. एक artificial sun का मतलब है कि उन्होंने एक प्रेशर चैम्बर लिया जिसमें वो दो हाइड्रोजन को फ्यूज कर पाए, है ना, मैग्नेटिक फोर्स से, या क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर, टेम्परेचर, सब कुछ वो लगा के उन्होंने एटम्स को वो फ्यूज कर पाए। तो उन्होंने ऐसा माहौल बनाया है, वो आर्टिफिशियल सन है। इट इज नॉट लाइक कि कुछ उन्होंने छू मंतर कर दिया और एक आर्टिफिशियल सन क्रिएट हो गया। आउट ऑफ नथिंग दे डिडंट क्रिएट। उन्होंने एक बहुत बड़ा, आप देखोगे ना, वो बहुत बड़ा सेटअप होगा। ओके, वो इतना सा छोटा सा वो रिएक्शन करवाने के लिए एक बहुत बड़ा सेटअप होगा कि एक छोटे से जगह पे वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन मेंटेन हो सके। I hope the doubt is clear. Yes, sir. Okay. So as we move in, that is where this is the world of chemistry. Okay, and this is the reference map. Okay, so whole multi-purpose of chemistry, and this is like the reference map. Periodic table will dwell upon it for a very long time. There are many ways to approach the periodic table of elements. Okay, so for example, one such activity sheet is this. I will even share it to you. So one way even very little kids can learn कि you fill up the electrons. Like +1 है तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है, +3 है तो रूल क्या है, पहले अंदर का इलेक्ट्रॉन भरना है फिर बाहर का इलेक्ट्रॉन भरना है। ओके, एंड देन यू हैव टू राइट लाइक 1 2 2 1, यानी अंदर 2 बाहर 1, 2 2 2 3, you get it right? So like that you can practice the electronic configurations. Okay, and we have come up with some card games. So Science DD is a startup, and so my wife and my one of our friends who run the community here. So we have come up with ways to like make sure that learning is easy for all kids. Not that कि after only certain age science we can teach. कोई भी बच्चा साइंस सीख पाए, हम लोग उसके लिए थोड़े मेथड्स डेवलप कर रहे हैं
उसमें से I'll share a little bit about that, where valency will be touched upon and the role of like how valency decides chemistry, like what properties it decides, and that is how the periodic table is classified. Like the elements over here can give one electron, that उनका configuration ऐसा है कि outermost shell में एक ही electron है, so they give one electron. The next shell, they have 2 electrons in the outermost shell, they give 2 electrons. Third shell have 3 electrons, so they can give 3 electrons. Now fourth shell have 4 electrons and 4 vacancies, though they don't want to either give or take, so they prefer to share. In the next, they have 5 electrons and 3 khali hain, so they want to take 3 electrons. Okay, in the next we have oxygen, sulfur, they have 2 vacancies, so they want to take 2 electrons. Electrons are negative charge, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें नेगेटिव आएगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें प्लस आएगा. ओके, सो और प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उससे बॉन्ड्स बनते हैं. ओके, सो इससे हमें एक आइडिया लगता है कि किस तरह के केमिकल बिहेवियर होगी. ठीक है, तो कैसे नए बॉन्ड्स बनेंगे. आई एम जस्ट रशिंग थ्रू दिस. हम लोग एक एक चैप्टर वुड टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ वी कैन मूव प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप. यानी कि पहले के कॉन्सेप्ट से हम नेक्स्ट को जोड़ते हुए कैसे जाएं. हमें उससे पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, यानी क्लोरीन 17287 वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इतना इंफॉर्मेशन आपको सेट होना चाहिए. उसके बारे में मैं थोड़ा सा उसमें ड्वेल करूंगा. फिर वैसे कैसे बॉन्डिंग जो है वो केवल लेन देन से नहीं, शेयरिंग से भी हो सकती है. जब दोनों नॉन मेटल हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता है कोई, तो वो बोलेंगे चलो हम शेयर कर लेंगे. एक कॉमन एरिया ढूंढेंगे जहां वो इलेक्ट्रॉन को बिठा देंगे, उसी को बॉन्ड बोलते हैं. जो कॉमन एरिया जहां पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा है वही हमारा बॉन्ड है बेसिकली. तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो नॉन मेटल्स हैं वो वैसे करते हैं. लेकिन नॉन मेटल्स के भी तरीके हैं. जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो इक्वली शेयर कर रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इक्वली शेयर कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इक्वली नहीं शेयर करते. ऑक्सीजन अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखता है. Okay, so all this is also part of the story, and that is how later we will proceed to chemical reactions and some properties like pH. ये सारी चीजें हम लोग को फिर ओवरऑल स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, पीएच और अलग अलग प्रॉपर्टीज मेटल्स के बारे में, उसको हम समझेंगे. फिर मेटल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है. ठीक है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कैसा होता है, आप उसको कहीं से भी मारो, वो जो ये पॉजिटिव आयन्स को इकट्ठा करके रखता है, क्योंकि वो हर तरफ से अट्रैक्ट करेगा. जो नॉन मेटल होगा वो केवल बॉन्ड की तरफ उसको पकड़ के रखेगा, लेकिन मेटल्स का क्या, बॉन्ड लगभग हर तरफ से. तो जब आप एक सफिशिएंट हीट दे दोगे और उसको आप पीटोगे तो मेटल्स का पतले पतले वायर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, फिर हम लोग ये भी समझेंगे बाद में कि मैटर और लाइट के बीच की लिंक क्या है. ये उसके बाद ही समझेगा जब आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स के एनर्जी लेवल्स के बारे में हम समझेंगे. और बेसिकली क्या होता है कि जो ब्लू है ना वो हाई एनर्जी है और रेड लो एनर्जी है. तो जो छोटे जंप्स हैं, जब कम एनर्जी वाले जंप हैं तो उसमें हमें रेड लाइट दिखाई देता है, और जो हाई एनर्जी जंप्स है यानी बड़ा बड़ा जो जंप होता है एनर्जी लेवल में, तो हमें ब्लू कलर दिखाई देता है. तो अलग अलग ये शेल के जो ये है ना, एक तरह से हमारा एक आधार कार्ड है ना, वैसे हर एक एटम का एक आधार कार्ड है ये लाइंस. जैसे क्यूआर कोड है ना, ये हर एक एटम का एक क्यूआर कोड है कि क्या कलर वो दे रहा है, प्रोवाइडेड हम उस कलर को अलग अलग फ्रीक्वेंसी में सेपरेट कर सकें. ओके, अगर हम एक मिक्स्ड कलर आएगा हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो समझ में नहीं आएगा. लेकिन हम जैसे कोई रेनबो जैसे स्पेक्ट्रम को ओपन करता है, तो वैसे ही हम स्पेक्ट्रम को ओपन करते हैं तो हमें मैटर के बारे में बहुत तरह तरह के प्रॉपर्टीज समझने को मिलती है, और उसको बहुत अलग अलग रूप में यूज करने का भी मौका मिलता है. तो कुछ हाई एनर्जी रेडिएशंस होते हैं, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिसे हम मैटर को पेनिट्रेट करते हैं, जैसे एक्सरे, इन सब का यूज करते हैं. सन की भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं गामा रेस, इससे हम फूड इंडस्ट्री में भी बहुत यूज करते हैं. सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है, कैंसर को मारने के लिए भी यूज होता है, तो इसके अच्छे यूजेस भी हम कर सकते हैं. इंफ्रारेड, जिससे हम टेम्परेचर नापते हैं, हमारा टीवी रिमोट ये सब इससे चलता है. माइक्रोवेव, ये सब से सेल फोन्स ये सब ऑपरेट होते हैं, और लो फ्रीक्वेंसी वाले वेव से रेडियो, टीवी, सैटेलाइट, ये सब कम्युनिकेशंस, ये सारी चीजें होती हैं. तो वैसे ही एक तरह का एंटेना टाइप ही है हमारी आंखें भी, जो लाइट को इन सब स्पेक्ट्रम में डिवाइड करता है और उसको वो परसीव करता है, लेंस. तो धीरे धीरे जब हम लाइट और मैटर के इंटरेक्शन को जब हम समझ लेंगे और उस लाइट के अलग अलग
जो फायदे हैं और उसके दूर का भी चीजें देखना और बहुत छोटी चीजों को भी देखना शुरू करेंगे, मेरे हिसाब से तभी हमें बायोलॉजी पढ़ना शुरू करना चाहिए। कि आपकी केमिस्ट्री थोड़ी स्ट्रांग हो गई है, आपकी फिजिक्स थोड़ी स्ट्रांग हुई है, अभी आप फिर से बायोलॉजी पढ़ के देखिए, बहुत क्लियरली समझ में आएगा। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक यानी कि चीजें, कुछ भी आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ता जाएगा कि कैसे मॉलिक्यूल से हायर लेवल ऑर्गेनिजम्स में चीजें इवॉल्व होती हैं, और लाइफ की भी सारी प्रोसेसेस समझ में आती है। कि जैसे हम केमिस्ट्री, केमिकल क्लासिफिकेशन समझते हैं, तो एनिमल्स की भी क्लासिफिकेशन समझ में आ जाती है कि कैसे अलग अलग, यानी एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे केमिस्ट्री से लाइफ इवॉल्व हुआ, लाइफ से कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए, ये पूरी अलग एक जानकारी मिलेगी। और इसी के हम भी एक पार्ट हैं, बायोलॉजी के भी हम ही एक पार्ट हैं, और हम एक अलग ही लेवल ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी हम क्रिएट करें। ऑर्गेनिजम्स नहीं कह सकते, बट इन अ वे एक तरह से सेंटिएंट बीइंग्स की तरफ ही जा रहा है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, जैसे हम देखेंगे हम सब कार्बन बेस्ड हैं और ये सारे सिलिकॉन बेस्ड हैं, तो ये भी एक एनवायरनमेंट में इसका भी एक असर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का और इलेक्ट्रॉनिक्स का कैसे यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी का। एंड जैसे एंड मैं सुन के फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि सुन के बहुत अच्छा लगा कि ये स्कूल्स की एक फोकस ही एनवायरनमेंट के ऊपर है। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि सबके अंदर ये कॉन्शियसनेस आए कि दिस इज द ओनली प्लैनेट वेयर वी आर लिविंग इन, और एट द एंड ऑफ द सेशन एक ऐसी ग्रुप एक्टिविटी हो हर एक क्लासरूम की जिससे हम यानी कि अपने वर्ल्ड को एक्चुअली चेंज कर सकें। जो क्लासरूम एक्टिविटी हो रहा है उसका सीधा असर हमारे एजुकेटेड, साइंटिफिकली एजुकेटेड होने का सीधा असर हमारे लाइफ में और आसपास के सराउंडिंग में वो होना चाहिए। तो ये एक बेसिक में इंट्रोडक्शन हुआ टू द व्हाट डू यू से द मैप, और हमारे जो फिलोसॉफी का कि हम क्या यानी कि करना चाह रहे हैं। तो मैं आई थिंक टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो सकता है, बट आई विल ट्राई टू ब्रश इट अप। तो इसी सीक्वेंस में ये आपका जो 8th स्टैंडर्ड का जो टेक्स्ट बुक मिला है, तो मेरे हिसाब से ये ऑर्डर में अगर आप रिवाइज करेंगे जो आप पढ़ रहे हैं, तो आई होप कि ये और आपको इजी भी लगेगा और कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले आप समझिए कि एटम के अंदर ही क्या होता है, इनसाइड द एटम। ये सब आपके टेक्स्ट बुक में, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, बट जब इनसाइड द एटम से आप कनेक्ट कीजिए कि वो केमिकल बिहेवियर कैसे हो रही है, केमिकल बॉन्ड का उस एटम से क्या कोरिलेशन है। उसके बाद फिर आप आगे के प्रॉपर्टी में आइए कि एसिड और बेसिस की क्या प्रॉपर्टी होती है, मैटर में और क्या कॉम्पोजिशंस होते हैं, और मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, और मैन मेड मटेरियल्स के चैप्टर में खासकर प्लास्टिक्स के बारे में। तो ये पूरा जो है आपका केमिस्ट्री का, सॉरी, एक तरह से केमिस्ट्री का पूरा एक मॉड्यूल हो गया। तो आइडियली आप ये सारे चैप्टर्स को आप एक साथ पढ़ेंगे तो वो एक पूरा बंच आपको क्लियर होते हुए और एकदम सीक्वेंशियली आपको समझ में आएगा। फिर ये मैटर क्या हरकतें दिखाता है, तो इसमें अगर जाते हैं तो हमें फोर्स और प्रेशर के बारे में पता चलेगा जो उसके मास से रिलेटेड है। फिर हीट के बारे में जो उसके वाइब्रेशंस और टेम्परेचर से रिलेटेड आपकी चीजें पता चलेंगी। साउंड भी मैटर से ही रिलेटेड है, मैटर के वेव्स के बारे में है। जब आप साउंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप ये भी अप्रिशिएट कर पाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म भी वेव्स का फॉर्म लेता है, उसकी मैथमेटिक्स भी वेव्स के जैसी है। और फिर हम लाइट के बारे में समझ पाएंगे। तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट एक पार्ट है, और जो फोर्स, प्रेशर, हीट एंड साउंड एक अलग पार्ट है। तो वो दोनों को, ये जो है ये पूरा आपका एक फिजिक्स का एक यूनिट हो जाता है। तो आपका जैसे चैप्टर्स हैं इसमें ऐसा हो रहा है कि केमिस्ट्री पहले इंट्रोड्यूस हो रहा है, बट इससे पहले अच्छा होगा कि आप जो मैप ऑफ मल्टी डिमेंशंस था, जो हम डॉट, लाइन, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वो एक बार वो मैप कंप्लीट कर लें, फिर आप ये एटम्स की दुनिया में एंटर करेंगे तो आपके पास एक ऑलरेडी एक सॉलिड सपोर्ट रहेगा, उसके बेसिस पे आप जा सकते हैं। ये होने के बाद जब आप लाइट और एक तरह से आप एक वर्ल्ड में आप एंटर, फिर हायर सिस्टम्स की बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम, फिर हेल्थ एंड डिजीजेस की, इन ऑर्गन सिस्टम्स की डिजीजेस होती हैं। तो वो इसमें माइक्रोब्स के बारे में भी होता है, ऑर्गन्स के बारे में भी होता है। तो वो सब हेल्थ एंड डिजीजेस इससे होता है। हेल्थ एंड डिसीजन की वजह, एक वजह है पोल्यूशन। तो हम अभी जैसे ये वाला जो मॉड्यूल है, तो इस मॉड्यूल में पूरा आपकी बायोलॉजी की चीजें हो गई। फिर जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो एक तरह से सोशल साइंसेस या वो वाला पार्ट आ जाता है, पोल्यूशन, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इकोसिस्टम, एंड इन द लास्ट अबाउट द स्पेस विच इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। ओके, सो ऐसे अगर मेरे हिसाब से ये लॉजिकल सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हैं रिवीजन के लिए या सिलेबस को कवर करने, तो एक काफी आपको इजी पड़ सकता है। और मैं आप लोग से मैं फीडबैक चाहता हूं कि आप ये मेथड जो ट्राई करेंगे, मुझे आप बताइए कि क्या सही में इसका आपको लग रहा है कि बेनिफिट है,
कि नहीं है, और हम लोग एक साइंटिफिक कम्युनिटी है एंड वी आर फुल्ली ओपन टू क्रिटिकल फीडबैक एंड वी वांट क्रिटिकल फीडबैक। आपको लग रहा है नहीं सर ये सब आप जो बोल रहे हो इन्हें जम नहीं रहा, तो वो भी आप मुझे बताइए, आई वुड लव टू नो एंड डिस्कस कि मैं कैसे इसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये एक पार्ट हुआ। सेकेंड, ये करिकुलम जो है वो कैसे, यानी कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। सो व्हाट वी हैव इज अ नॉन जीरो सम अप्रोच। इसका मतलब है हम लोग का कोई एग्जाम करके नहीं है, बट डेली एग्जाम एक होता है जो गेम के फॉर्म में होता है, और एक ही टेस्ट लगभग जब तक कोई बच्चा उसमें मास्टरी आ जाए उस टेस्ट को वो रिपीट करता रहेगा। वो 8 बार 10 बार भी सेम टेस्ट देगा, और वो जब पास होगा तभी आगे बढ़ेगा। उनको छोटे ग्रुप में बांटा गया है, और हर ग्रुप इसमें जिम्मेदार है कि वो पूरी ग्रुप जीतेगी और मिलके वो एक ग्रुप प्रोजेक्ट करेगी। तो अभी जैसे हम लोग के अभी मल्टी जनरेशनल भी हो चुका है कि हमारे अलग अलग जनरेशन के अभी लर्नर्स हैं। जैसे हम जैसे मिलेनियल लर्नर्स हो गए तो हमारी एक ग्रुप हो गई, फिर और एक जनरेशन की लर्नर्स हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, फिर और एक जनरेशन की लर्नर्स है जो 8th 9th 10th में है, और उसका अगला जनरेशन जो अभी 3rd 4th या अभी शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा एक एक लेयर बाय लेयर हमारे जनरेशन हो रहे हैं, और वो सब एक दूसरे को सिखा रहे हैं और फर्दर पास डाउन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं ही सभी बच्चों को पढ़ाऊंगा, वो मेरे से हो भी नहीं सकता, और ना मेरे पास टाइम है और ना उसकी जरूरत है। 9th 10th स्टैंडर्ड का बच्चा 3rd 4th के बच्चे को पढ़ा सकता है। तो हम लोग एक इससे नए मेथड्स भी और डेवलप कर रहे हैं। आवाज का थोड़ा सा ओके, थैंक यू। सो कुछ कुछ और नए मेथड्स हैं जिससे हम केमिस्ट्री को ना ही केवल क्लासरूम में, या साइंस को ना ही केवल क्लासरूम में, इसको हम प्लेग्राउंड में भी उतार सकते हैं। और इससे कुछ कुछ चीजें जैसे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानकारी, क्या पता है इससे और अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए आपकी पूरी क्लासरूम, मान लीजिए आपके 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप लोग को मिल करके सॉलिड बनना है, तो कैसे आप अरेंज हो जाएंगे? सब एक दूसरे के पास अरेंज हो जाएंगे। जैसे आप पीटी करते हो या मार्च पास्ट करते हैं, आर्मी रिपब्लिक डे का भी जैसे परेड होने वाला है, तो आप देखेंगे कि कैसा एकदम ऑर्डर्ड पैटर्न है, सब एक दूसरे के पास है, लेकिन आप एक दूसरे को वाइब्रेट भी कर सकते हैं। अभी मान लीजिए अभी ड्रम्स का बीट बढ़ रहा है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे बढ़ेगा आपके पास और फ्रीडम होगी, आप एक दूसरे से हाथ दूर भी कर सकते हैं, आसपास घूम सकते हैं, लेकिन ज्यादा फैल नहीं सकते। तो आप जैसे आप कभी गरबा में देखा होगा या शादियों में बारात में कैसे डांस होता है कि लोग उधर ही हैं, लेकिन इधर उधर कहीं भी कोई जा सकता है, इधर उधर कूद सकता है, तो वैसे आप डांस कर सकते हैं। थोड़ा और फास्ट बीट्स होगा तो वैसे डांस होगी, तो एटम्स भी लिक्विड में वैसे ही बिहेव करते हैं, आसपास वो घूम सकते हैं। और फर्दर आप और हायर टेम्परेचर लोगे तो आप पूरे ग्राउंड में कहीं भी फैल सकते हैं, आप किधर भी भाग सकते हैं, इधर उधर फुल स्पीड में आप भाग सकते हैं जब बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगी ड्रम्स के बीट्स की। तो ये एक तरीका हुआ जिससे आप सॉलिड लिक्विड गैस को समझ सकते हैं। आप इवन केमिकल रिएक्शंस भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक कोयले का टुकड़ा है जो बहुत बड़ा है, और दूसरे जगह पे एक कोयले का टुकड़ा है जो बहुत छोटे छोटे हैं, तो बताइए कि सबसे ज्यादा जल्दी कौन जलेगा? सर जो बड़ा है। बड़ा टुकड़ा जल्दी जलेगा कि जो छोटे? छोटे वाले? अमाउंट सेम है, मैं बता रहा हूँ कि दोनों एक ही किलो है, लेकिन 1 किलो बड़ा सा टुकड़ा है और दूसरे जगह पे 1 किलो को मैंने तोड़ तोड़ के पाउडर बना दिया। तो अभी बताइए कि आग किसमें जल्दी लगेगी और कौन सा जल्दी खत्म हो छोटे जाएगा? वाले में से पाउडर, छोटे वाले में ना? क्यों? तो इसलिए वो फटाक से फायर कंडक्ट कर लेगा। नहीं, छोटा वाला क्यों? सर क्योंकि उसमें एटम्स एकदम सटे हुए रहेंगे एक दूसरे के साथ। नहीं, बड़े में भी सटे हुए हैं, बट जो केमिकल रिएक्शन जल रहा है ना, तो कौन से एटम्स जलेंगे कोयले के? आप बताइए, ये जो अभी ये लोग सॉलिड में छोटे वाले जलेंगे, क्योंकि छोटे वाले में शायद ऑक्सीजन भी होगा, नहीं अलग अलग होंगे तो। ऑक्सीजन हवे में है, साइज इसमें केवल कार्बन है। आप बस ये देखिएगा कि एक ऐसा है, ठीक है, यहाँ जो सॉलिड टाइप है, ठीक है, तो आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए कोई गैस है, ऑक्सीजन तो गैस है ना, वो अब सॉलिड से रिएक्ट करने भागते हुए आएगा, ठीक है, तो आप बताइए कि वो किस बच्चे को छू पाएगा, जो बाहर सतह में है या जो अंदर है? बाहर वाले। बाहर सतह में। तो अभी आप बताइए कि जब एक बड़ा पार्टिकल होगा तो सतह में कितने एटम्स होंगे और अंदर कितने एटम्स होंगे? जब छोटे पार्टिकल्स होंगे तो क्या होगा? सर छोटे पार्टिकल हेलो, आपकी आवाज नहीं क्लियर हो रही है। सर छोटे पार्टिकल्स होंगे तो ऑक्सीजन सभी के साथ कंबाइन कर पाएगा।
देखिए ऑक्सीजन सबके साथ कंबाइन करेगा, लेकिन सबसे पहले किसके साथ करेगा? सर जो बाहर है सर ऊपर वाले। वो सबसे बाहर है ना, है ना, जो सबसे बाहर है, यानी जो सबसे बाहर के सतह में है। जब हम कोई चीज को तोड़ते हैं तो हम उसके वजन को तो नहीं कम कर रहे हैं ना, बस हम उसके सतह को और एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है। और जो एटम्स हैं वो ओपन में आ गया, वो जो अंदर था, है ना, है ना। तो इसलिए क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो जब आप डांस करेंगे ये वाला, तो आपको सामने दिखेगा कि एक, अगर मान लो 10 बच्चे इकट्ठा हो गए और कहीं पे 4-4 बच्चे इकट्ठा हैं, अब उनमें से 10 बच्चों को एक एक, अब 2-2 बच्चे आएंगे और एक कार्बन, यानी ऑक्सीजन, 2-2 ऑक्सीजन आएंगे, एक कार्बन को उठा के भागेंगे, तो ऑक्सीजन रिएक्टिंग विद कार्बन टू गिव CO2। ओके, तो अगर 10-20 बच्चे इकट्ठा हो तो आप खुद भाग के करके देखिए कि कितना देर लगता है। मान लीजिए एक छोटा ग्रुप है, तो खुद करके देखिए कितना देर लगता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक सेंस मिलेगा कि रिएक्शंस कैसे होती है, ठीक है। अब इस रिएक्शंस की कहानी आपको और समझना है, जानना है, और इसके प्रॉपर्टीज के लिए हमने ये मेथड जो डेवलप किया है, ये प्ले एंड लर्न कार्ड गेम्स है। इसमें 36 एलिमेंट्स हैं, इसमें एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंबल, वैलेंसी, ग्रुप, पीरियड, केमिकल बिहेवियर और प्रॉपर्टीज। ये बेसिकली आपके एटम्स के चैप्टर का जो भी चीजें हैं वो इसमें एक कार्ड के फॉर्म में इंक्लूडेड है। ऐसे 36 कार्ड्स हैं, ओके। तो ये इसके रिलेटेड मैं आपको एक छोटे से 1-2 वीडियो दिखाता हूँ, जो हमने वहाँ पे जो मेथड्स जो हमने ऐसे वहाँ ट्राई किए हैं। ओके, तो ये हम लोग का टीम है, साइंस दीदी और आसान विज्ञान। हम लोग ने मिलके एक आइडिया एक बनाया कि क्या क्या हम ये कार्ड गेम से ही केमिस्ट्री को सीख सकते हैं करके। तो ये हम लोग इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं और हमें अभी काफ़ी इसमें सक्सेस मिल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है ये केमिस्ट्री बहुत आसानी से, जो बेसिक है, ना ही केवल रट पा रहे हैं बट वो उसको समझ भी पा रहे हैं। थोड़ा बहुत उनको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, और जब हम वो वीडियो से लिंक कर दें जैसे पावर ऑफ 10 से, तो वो ये होता है। तो ये हमारा क्लासरूम में ऐसा होता है। तो बस हम लोग सब आते हैं, बैठते हैं ऐसे खेल खेल में। दिस इज हाउ वी प्ले एंड लर्न साइंस। तो ये बस एक ही रूल है कि जब भी आप कार्ड खेलेंगे तो एटॉमिक नंबर और नेम साथ में बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आप स्किप कर दिए कि बस नंबर से खेल रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको साथ में बोलना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, आपको ऑनलाइन यूट्यूब लिंक भेज दूंगा, उसमें आपको सारे वो सब मिल जाएंगे। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि रिपीटेडली जो और भी नए बच्चे, लगभग अभी हमारे उधर कम्युनिटी के सभी बच्चों को, लगभग 15-16 बच्चों को ये चीज़ जो है याद हो गया है। और ये केवल ऐसे लाइन के फॉर्म में नहीं, अभी हम, और इसमें जैसे कुछ कुछ गेम्स जो है ना वो क्विज होता है। जैसे कि आपने काफ़ी गेम खेल लिया कि आपने ये सब प्रैक्टिस कर लिया, पहले आपने कार्ड्स खेला, आपस में बांटा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है वो जीता, ठीक है। आप खेलेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर खेलेंगे कि किसका एटॉमिक नंबर कम है वो जीता। फिर आप खेलेंगे कि आप जोड़ी बनाएंगे, कि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की जोड़ी बनाएंगे, ठीक है। ऐसे खेलते खेलते आपको कुछ कुछ पैटर्न्स याद हो जाएंगे। उसके बाद ये फाइनल आपका असेसमेंट गेम है। Atomic number 28. Electronic number 25. Electronic configuration of 16. 286. Atomic number 4. Atomic number 23. ओके, सो ये थोड़े बहुत हमें एग्जांपल्स मुझे शेयर करने थे। एंड ओके, फिर अब अभी नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़े
जो ECT2 एक्सपेरिमेंट्स हैं एंड कुछ कुछ स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच हैं, जो हम कहते हैं ना नॉन जीरो सम क्लासरूम है और किस तरह के क्लासरूम है, तो कुछ कुछ ऐसे एक्टिविटीज हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। और इन सब में मैम जो स्टूडेंट्स जो IWSA के अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड जिससे ट्रेंड है वही आके इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। निकिता एंड संजना दे हैव जॉइंड आवर ग्रुप, दे आर फ्रॉम तुर्बे ओनली, एंड उनके काफी सारे नए मेथड्स, वो इनोवेटिव मेथड्स वो लेके आए और इन बच्चों को बहुत प्यार से वो संभाल रहे हैं और बहुत अच्छा वो लोग सिखा रहे हैं। तो दीस आर सम न्यू मेथड जिससे बच्चे खुद बाकी बच्चों को सिखा सकते हैं। सो ऐसे कुछ कुछ हाई एनर्जी क्लासरूम्स हो, थोड़ा शोर शराबा हो लेकिन पढ़ाई के बारे में हो, ऐसे डिस्टर्बेंस वाला शोर शराबा ना हो, यानी कि पढ़ाई के बारे में हो। तो हम लोग का वैसा थोड़ा कोशिश रहता है कि क्लासरूम वैसा रहे। और उससे आगे बढ़ते हुए कुछ कुछ ऐसे होम एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको एक बड़ा सा ये जो ब्लॉग जो दिख रहा है ना, वो मैं आपको एक मिनट जस्ट स्क्रीन शेयरिंग 1 सेकंड के लिए मैं स्टॉप करता हूँ और अपना मैं एक वो वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कि वो क्या एक्सपेरिमेंट है। ये आप लोग प्लीज जरूर ट्राई कीजिए, लेकिन नाइट टाइम में ट्राई कीजिएगा, अंधेरा होने के बाद ये जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। ये आपका टॉर्च का लैंप है, ओके। अगर मान लीजिए मैं ऐसे मार के यहाँ पे एक हाथ रखता हूँ, आपको पीछे एक शेडो दिख रहा है क्या हाथ का, बड़ा Yes, शेडो Yes. है ना? Yes, sir. I will do. अभी दिखेगा शेडो, है ना? Yes, ये sir. शेडो बड़ा सा दिख रहा है ना आपको? Yes. ओके, सेम चीज अब ऐसा कर दिया तो ये शेडो कहाँ होगी? रूफ में होगी। Yes. ओके, मे बी आई डोंट नो इफ द रूफ इज विजिबल, बट हाँ ओके, ऐसे रूफ में होगी। Yes, sir. Yes, ओके sir. फाइन। तो वैसे ही रूफ में ना आपको क्या करना है, एक ऐसे मोबाइल का जो टॉर्च है वो रहेगा, इसके ऊपर ना कोई ट्रांसपेरेंट शीट रख दो थोड़े हाइट में, ठीक है। वो ग्लास भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके ऊपर, उस ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर कुछ कुछ चीजें हैं जो आप करके एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ठीक है, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, तो मैं जस्ट एक उसका मैं वो वीडियो दिखाता हूँ आपको। इन्हें आप वीडियो देख के वीडियो में इतना मजा नहीं आएगा जितना आप खुद के आंखों से करके देखेंगे, क्योंकि उसकी जो एक्चुअल जो क्वालिटी है ना वो रियल लाइफ में ही ज्यादा है, ठीक है। जो ये आपको यहाँ बड़ा सा ऐसे धब्बा जैसा दिख रहा है ना, एक ब्राइट सा स्पॉट, ठीक है, ये क्या है? उस ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर एक पानी की बूंद है, ओके। एक छोटी सी पानी की बूंद है। जब हम लाइट ऊपर से मारते हैं तो देखिए कैसे लाइट जो बेंड होता है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो कैसे एडजस्ट उसके चमक रहे हैं और उसके आसपास की रीजन कैसे डार्क हो जाती है, ओके। अभी मैंने इसमें कुछ कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डाले, तेल, तो देखिए कैसे तेल और पानी आपस में मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता है आपको फिर समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस बॉन्ड के बारे में जब हम समझेंगे तो आपको रिलेट कर पाएंगे कि क्यों कुछ चीजें आपस में मिक्स होती है, क्यों नहीं मिक्स होती है। क्योंकि वाटर क्या था? H2O था, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं बांटते हैं। ऑक्सीजन के पास थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसमें हल्का माइनस वाला चार्ज रहता है, हाइड्रोजन में हल्का प्लस वाला चार्ज रहता है। लेकिन ऑयल में ऐसा नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन लगभग बराबर इलेक्ट्रॉन बांटते हैं, तो उनमें प्लस माइनस का इतना हिसाब नहीं रहता, वो लगभग बराबर फैला हुआ है, ठीक है। तो उस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कॉन्सेप्ट है उसके वजह से ये मिसिबिलिटी गैप और जो वो आता है। लेकिन देखिए अगर हम ऐसे कोई चीज डालते हैं जिससे ये मिसिबिलिटी गैप दूर हो सके, तो ऐसी वो चीज होनी चाहिए जिसमें दोनों गुण हो, ठीक है। तो जो ये मिसिबिलिटी गैप है, पहले ये इस एक्सपेरिमेंट क्लियर दिखता है। अभी मान लीजिए मैं एक ऐसा कुछ चीज डालता हूं, आप बताइएगा कि वो क्या है। अभी देखिए कैसा वो फिर होता है ना। वो पूरा गैप कैसे वो फूट गया ना, जैसे अंडा अंदर से जैसे कोई सेल फूट गया है, एक्सप्लोजन हो गया है ना, वो पूरा गैप को वो खत्म कर दिया, है ना। ये आप जब खुद एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो बहुत अच्छे से ये विजुअलाइज हो सकता है, ओके। सो जस्ट अ सेकंड,
ओके, सो इसी बेसिस पे, इस मिसिबिलिटी को समझ के ही हम एक और जो एक इजी टू डू होम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। अपना सारा वेट वेस्ट अगर हम अलग करके कंपोस्ट करेंगे और अपना सारा प्लास्टिक अलग इकट्ठा करेंगे, तो ये सेम कॉन्सेप्ट है कि ये सारी चीजें आपस में बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि इसमें पानी पकड़ता है, ठीक है, ये प्लास्टिक जैसी चीजों से बनी है, तो ये सारी चीजें भी रिसाइक्लेबल है। या ये फिर से प्लास्टिक इंडस्ट्री में चली जाएगी, या इससे कुछ कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो ऑयल में कन्वर्ट कर देते हैं इसको फर्दर ब्रेक डाउन करके, या इसको पूरा कंप्रेस करके प्लास्टिक के यानी कि टूल्स बनाती हैं, जैसे ब्रिक्स और वो सारी चीजें बनते हैं, जो कि काम का चीज हो सकता है, वरना ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। ठीक वैसे ही जो खाने का जो वेस्ट है, अगर आप एक छोटा सा कंपोस्टर अपने घर में आप चलाएंगे, तो शुरू में थोड़ा सा मुसीबत होगा, लेकिन मैं पिछले 3 साल से मैं और मेरी वाइफ यहाँ घर में हम लोग कर रहे हैं, और पहले साल थोड़ा इश्यू हुआ क्योंकि थोड़े बहुत वो उसमें वर्म्स आते हैं और वो जो फ्लाइस आते हैं, बट उसको कंट्रोल करना आप सीख जाओगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि हमने पिछले 2 साल से एक भी कचरा हमारे घर से बाहर नहीं गया, और कंसिस्टेंटली हम कभी भी आता है हम बोलते हैं भैया नहीं है घर में कचरा, हर बार बोलते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि चलो इतना तो हमने साइंस सीखा कि अपने घर में ये तो अप्लाई कर पाए कि हम घर से एक भी कचरा हम लोग बाहर नहीं यानी फेंक रहे हैं। तो इसी के साथ साथ एक और कचरा है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है, जिसमें मेरा ऑफिस रिलेटेड काम चल रहा है, और कभी आपको ई वेस्ट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए तो हम लोग के ग्रुप में बीआरसी में हमारे सेक्शन में ये एक नया हम लोग ने एक टेक्नोलॉजी भी डेवलप किया है, प्रोडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स, जो कि कोविड को मारता है, जो कि एंटीवायरल है और बहुत उसके यूनिक एप्लीकेशंस हैं। एंड हम लोग ये कॉपर जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जो वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोर्ड है, उससे हम रिकवर कर पा रहे हैं, और एक एकदम नए केमिस्ट्री के माध्यम से जो पॉलीमेरिक रेजिन्स और इन सब के बारे में आशा है कि मुझे बाद में भी कभी कोई समय मिलेगा तो मैं ई वेस्ट पे ही काफी कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही कीमती चीजें भी हैं और साथ में बहुत ही घातक चीजें, बहुत ही टॉक्सिक चीजें जैसे लेड, मरकुरी, ये सारी चीजें भी हैं। तो इसके बारे में यानी कि सतर्क रहना और घर से ही ई वेस्ट को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में काफी और जानकारी यानी कि मैं चाहता हूँ। इसी पे मेरा पीएचडी की पढ़ाई भी चल रही है, तो वो सारी चीजें भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि जितने सरल भाषा में हो सके और समझा सके मैं समझाऊंगा। नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे अभी आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल कभी भी आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं, इसके लिए ओपन हूँ। और इसके अलावा हमारी काफी सारे कम्युनिटी एक्टिविटीज भी चलते हैं, जो हम अभी जैसे कि तुर्बे में कम्युनिटी है जो कि माइग्रेंट हैं, जो अभी हमारे साथ पढ़ रहे हैं और काफी जल्दी सीख रहे हैं। तो ये सारी जो स्टूडेंट्स हैं जो हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्पेशली IWSA के अर्ली चाइल्ड केयर में